So, in the last class, we discussed what is marketing and nature of marketing, and then we saw the scope of marketing. That what does marketing cover in its ambit, and today we will discuss about the evolution of marketing or approaches to marketing. Basically, there are five approaches to marketing which are used by marketeers, or we can say this is the evolution of marketing that from where the concept of marketing has evolved to its present form. So it signifies that in earlier era, the concept of marketing was referred to like this, and the products and services or goods were purchased like this, and the features were different from in different eras. So this will cover the various stages of marketing. So the first concept that was in the marketing was production concept. Here, what was happening? The marketeers, or you can say companies, whatever they were producing, just they were selling to their customer. So in this era, whatever the goods or product was manufactured by the companies, that was only available choice to customers. So there was no choice available to customer. So whatever is being was being produced by uh, marketeers has to be bought by the consumers. So consumers had no choices. They were they were not given many choices of brands, or product differentiation was not there. So all these were the in production concept. So the production concept is one of the oldest concepts in business. It holds that consumers prefer products that are widely available and inexpensive. So the products which are available in the marketplace are preferred by consumers. Managers of production-oriented businesses concentrate on achieving high production efficiency, low costs, and mass distribution. So this is the feature of production concept, where primary objective of a company is to produce more, lower the cost, and mass distribution. So here, what as a marketer, why I am doing? I am producing more with to achieve production efficiency, low cost, and mass distribution. This orientation makes sense in developing countries such as China, where the largest PC manufacturer, legend, and domestic appliances giant here take advantage of the country's huge and inexpensive labor pool to dominate the market. So basically, what I am doing, I am producing. My only target is to produce. That is, whatever I am producing or I am manufacturing, I am just going to sell those goods or products into the market, and consumers will have to buy those because consumer has no choice. So marketers use the production concept when they want to expand the market. So when I feel that I have to expand my market, so I will go for production concept. So here the product differentiation, product choice, competitors, competitive prices, or whatever choices are being offered today were not present in the production concept. So the next concept is product concept. सर What? Yes, sir. Please. सर वो लास्ट वाला समझ नहीं आया सर, बिल्कुल भी सॉरी सर। कौन सा बताओ? सर प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट बस सर आप, हाँ यही। The marketers use the product concept when they want to expand the market. ये वाला. सर कुछ भी समझ में नहीं आया, पता नहीं क्यों। ओके, मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ. तो थैंक यू। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में हमारे अंदर क्या था, जो मार्केटिंग का पहला कॉन्सेप्ट था, अर्लियर फेजेस था. इसके अंदर जो कंपनी का टारगेट था या मार्केटियर का टारगेट था कि उनको प्रोड्यूस करना है. सिर्फ जो भी प्रोडक्ट को वो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसी को उनको मार्केट में सेल करना है. इस कॉन्सेप्ट के अंदर कंज्यूमर के पास कोई चॉइस नहीं थी. क्यों चॉइस नहीं थी? क्योंकि जो भी मार्केट में अवेलेबल था मास स्केल पे, वही कंज्यूमर्स को परचेज करना पड़ता था, बाय करना पड़ता था.
और यहाँ पे क्योंकि कंपनीज कुछ गिनी चुनी थी, तो उसकी वजह से भी कंज्यूमर के पास कोई और अल्टरनेटिव नहीं था। तो कंज्यूमर जो भी उसको मार्केट में मिल रहा है उसी चीज को वो परचेज कर रहा है। और इस कॉन्सेप्ट के अंदर हम कब इसके जो फीचर्स हैं वो कि मार्केटियर क्या कर रहे हैं कि प्रोडक्शन एफिशिएंसी अगर उनको अचीव करनी है, लो कॉस्ट को टारगेट अचीव करना है और मास डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो जब हम प्रोडक्शन ऑफ एफिशिएंसी की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स का सिंपल कॉन्सेप्ट होता है कि जब हम मास स्केल पे प्रोडक्शन करेंगे तो हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो ऑटोमेटिक रिड्यूस हो जाएगी। यस सर। बिल्कुल। तो जब हम मास स्केल पे प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमारी प्रोडक्ट एफिशिएंसी भी आएगी, क्योंकि फिर आपको जो एक कहते हैं कि भाई हमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलेगा और उसके साथ हमारा जो लेबर का जो एक्सपर्टीज है वो भी मिलेगा। तो आपको प्रोडक्शन एफिशिएंसी भी मिलेगी, आपकी कॉस्ट भी रिड्यूस होगी, और क्योंकि आपने लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस किया है तो आप मास डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं मास डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ? क्योंकि आप और कोई प्रोडक्ट को प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। तो आपने एक प्रोडक्ट को चूज कर लिया। सपोज करो कि जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, 1980s में क्या होता था कि अगर हम कार की बात करें तो कार के अंदर हमारे पास दो ही चॉइसेस थे, फिएट एंड एम्बेसडर की। तो यही चॉइसेस हुआ करती थी। कौन सी? फिएट एम्बेसडर। एम्बेसडर जो पुराने वाले जो पॉलिटिशियंस लेकर चलते हैं, तो वो हाँ, वो वाइट वाले, तो वो अगर उसकी वैसे कॉस्ट देखी जाए तो वो काफी जो नॉर्मल कार आज के टाइम पे आते कॉम्पैक्ट उतने में आते थे, लेकिन जब उसको जो पॉलिटिशियंस है उनकी सिक्योरिटी को लेकर और जो भी रीजंस होते हैं उसको अपग्रेड करने के बाद काफी उसमें खर्चा करके काफी एक्सपेंसिव हो जाती है। तो इस कॉन्सेप्ट के अंदर क्या था कि कंज्यूमर के पास कोई चॉइस नहीं थी, पहली थिंग। और दूसरी थिंग ये थी कि तो हम अगर एज अ मार्केटर मेरे को अगर अपनी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन की एफिशिएंसी इंक्रीज करनी है तो इस कॉन्सेप्ट को मैं यूज करता था, यानी कि मैं इस वाले जो मार्केटिंग अप्रोच की तरफ मूव करता था। तो ये बेसिक था इसका। आई गेस आपको समझ आया होगा। यस सर, थैंक यू सर। ओके, तो नेक्स्ट मूव करते हैं प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के अंदर। तो अब इस वाले कॉन्सेप्ट में व्हाट वाज हैपनिंग कि वी मूव टू द प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, और कि हम थोड़ा अपने प्रोडक्ट में फीचर्स को ऐड करें। कि अब हमारा प्रोडक्शन का फोकस नहीं है, अब हम अपने प्रोडक्ट के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि वी आर गिविंग डिफरेंट फीचर्स टू द प्रोडक्ट, और वी आर ऑल्सो innovating something new so that consumers buy our products. So the statement states that the product concept proposes that consumers favor products offering the most quality, performance or innovative features. So here the quality, performance or features of the product were came into force. So as a marketer what was I now, और प्रोडक्ट की फीचर्स के ऊपर और उनकी जो परफॉर्मेंस है वहां पे फोकस कर रहा हूँ। तो अब इसमें हुआ क्या कि जैसे अब एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं आपको फिएट एम्बेसडर का एग्जांपल दिया कि अगर आप उसको नॉर्मल अगर बाय करते हैं, कोई नॉर्मल आदमी बाय करता है तो वो 5 से 6 लाख में उस टाइम आज के टाइम में आ जाएगी। लेकिन जैसे जैसे उसके फीचर्स हैं कि भाई अगर आप किसी गवर्नमेंट डिग्निटरीज को दे रहे हैं या वो परचेज कर रहे हैं तो उसकी सिक्योरिटी की इशू है, तो उसमें वो फीचर्स को इम्प्रूव करेगा कि मेरे को ये फीचर चाहिए इसमें, और ये आपकी विंडशील्ड ऐसी है तो मेरे को ऐसा चाहिए। तो हम अपने प्रोडक्ट के अंदर क्या क्वालिटी ला सकते हैं, क्या परफॉर्मेंस उसमें ला सकते हैं, और कौन से इनोवेटिव मेथड्स हो सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट का जो है एरा था जिसमें हमने अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई करना स्टार्ट किया। अब इसमें क्या था कि मैनेजर्स आर समटाइम्स कॉट इन लव विद देयर प्रोडक्ट्स। तो मैनेजर्स जो भी आप, क्योंकि मैं मार्केटर, मेरा अगर जो प्रोडक्ट को सेल कर रहा हूँ मार्केट में, तो उसमें मैं जो है अपने प्रोडक्ट को ज्यादा प्रेफर करूंगा कि मेरा प्रोडक्ट मार्केट में सेल ऑफ हो। तो इस जो है इस अफेयर के चक्कर में क्या होता था कि वो एक गलती भी कर देते थे। कैसे कैसे कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो ऑटोमेटिकली जो है लोगों को परचेज करने के लिए क्या कहते हैं इन्वोक करेगा उनको
जो है प्रॉम्प्ट करेगा परचेज करने के लिए। तो इस चक्कर में क्या होता था कि हम अपने प्रोडक्ट को बेटर दिखाने के चक्कर में उसमें और जो इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं वो नहीं कर पाते। तो ये एक जो हम मार्केटिंग मायोपिया भी कई बार इसको कहते हैं, वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन कि व्हाट इज मार्केटिंग मायोपिया, कि बिलीविंग अ बेटर प्रोडक्ट विल बाय इटसेल्फ लीड पीपल टू बीट अ पाथ टू देयर डोर। तो हम कह रहे हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट सर है, इससे पहले वाली लाइन एक बार समझा दीजिए ना। कौन सा? दे माइट कमिट वाली लाइन। दे माइट कमिट द बेटर माउस स्ट्रैप पॉलिसी। तो यही कहने का मतलब है कि जो हम इसमें कह रहे हैं कि हम बेटर के चक्कर में, अपने प्रोडक्ट को बेटर दिखाने के चक्कर में हम ये सोचते हैं कि हमारा कंपटीटर क्या कर रहा है, कि हमारा कंपटीटर हो सकता है कि हमसे बेटर प्रोडक्ट को बना रहा है और हम इसी उसमें रहें कि हमारा ही प्रोडक्ट बेटर है। तो इसमें हम प्रोडक्ट के ऊपर ही फोकस करे जा रहे हैं कि सिर्फ हमने कहा कि हम बाकियों को नहीं देख रहे कि हमारा कंपटीटर क्या प्रोड्यूस कर रहा है और अपने प्रोडक्ट में क्या जो है फीचर्स ला रहे हैं। तो इस जो हमारा ये एक कह सकते हैं कि हम जो इस उसमें रह रहे हैं कि हमारा ही प्रोडक्ट बेटर है, तो उसमें हम एक कमिट कर सकते हैं। गलती भी कर रहे हैं कि हम ये जो माउस स्ट्रैप है तो उसमें हम फंस रहे हैं कि हम अपने प्रोडक्ट को ही देख रहे हैं, बाकी को नहीं देख रहे। सो बिलीविंग अ बेटर प्रोडक्ट विल बाय इटसेल्फ लीड पीपल टू बीट अ पाथ टू देयर डोर। तो उनका मतलब जो इसका लाइन का मतलब है यही कि हम अपने प्रोडक्ट के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं, हमारे मार्केट में क्या चल रहा है उस पर हम फोकस नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ ये मान के चल रहे हैं कि अगर इस वाले कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा रिलेट करें प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में, तो मोर और लेस बोथ आर द सेम। बस यहाँ पे क्या है कि हम प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के अंदर प्रोडक्शन पे फोकस कर रहे थे, यहाँ पे हम प्रोडक्ट पे फोकस करें तो उसमें क्या क्वालिटी हो सकती है, उसकी हम और क्या फीचर्स दे सकते हैं वो है। तो मोर और लेस इसलिए सेम है कि हम प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के अंदर भी हम बात करें कि हम प्रोड्यूस करेंगे और उसी को सेल करेंगे। प्रोडक्ट में थोड़ा एक स्टेज ऊपर चले गए, उसमें कहा कि ठीक है हम प्रोडक्शन तो कर रहे हैं लेकिन हम जो हमारा प्रोडक्ट की क्वालिटी है, उसके फीचर्स हैं, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके जो और जो इनोवेटिव मेथड्स हो सकते हैं, उसको पैकेजिंग है, अट्रैक्ट बनाना है, उसको आइज को वो अपीलिंग लगे, कंज्यूमर को वो अट्रैक्ट कर सके, उन चीजों पे फोकस करेंगे। तो अभी आप सेलिंग पे नहीं आए हैं, अभी आप प्रोडक्ट पे ही हैं, तो आप ये मान के चल रहे कि जो भी मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ अगर मेरा प्रोडक्ट बेटर है तो वो कंज्यूमर को खुद अट्रैक्ट करेगा परचेज करने के लिए। तो ये इसका क्रक्स है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट का, जिसमें हम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी वगैरह पे फोकस करें। तो सर हमें अपने प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से कंपेयर नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। तो ये जो बताया ना कि हम इस जो है बिलीव में है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वही बेटर है। अगर हम बेटर प्रोडक्ट को बनाएंगे तो हमारा जो कस्टमर है, जो या फिर प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है, वो आके प्रोडक्ट को परचेज करेगा। तो कई बार होता क्या है कि जैसे अब हम लार्ज कंपनी होते हैं तो कई बार अगर कोई छोटी कंपनी या मीडियम साइज की कंपनी आके हमारे कंपिटिटिव में बनाती है, कुछ प्रोडक्ट को बनाते हैं, कई बार हम उसको इग्नोर करते हैं। क्यों इग्नोर करते हैं? कि वी आर द बिजनेस लीडर्स, वी आर द मार्केट लीडर्स, व्हाट एवर वी आर प्रोड्यूसिंग विल अट्रैक्ट कस्टमर्स। तो इस चक्कर में भी हम मिस्टेक कर जाते हैं। तो जो हम देखते हैं कि जो है मार्केट में जब ये होती है कि मार्केट का जब हमारा शेयर डाउन जाने लगता है तब हमें पता लगता है कि नहीं, वी आर रॉन्ग इन समवेयर। तो उस चीज में हमें अपने कॉम्पिटिटर को यस देखना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट की हम बात करें तो हम सिर्फ अपने प्रोडक्ट पे फोकस करें तो उतना, क्योंकि अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अब जैसे कार के अंदर जो 1980s में दो ही कंपनी थी, फिएट या एम्बेसडर थी, तो दो ही कंपटीटर हैं। तो ठीक है, अब जो भी वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको परचेज कर रहे हैं, तब उनको लगता है कि ठीक है मेरा जो प्रोडक्ट है वो बेटर है। तो उस चक्कर में होता है कि हम मिस्टेक कर जाते हैं। आई गेस आपको समझ में आए? यस सर। ठीक है, तो अब जैसे एक एग्जांपल आपको और देता हूँ। अब जैसे एंड्रॉयड फोन का हम एग्जांपल लेते हैं, तो एंड्रॉयड फोन का अगर एग्जांपल हम लें तो स्टार्टिंग में उससे पहले जो नोकिया था वो लीडिंग प्लेयर था। तो एंड्रॉयड इंडिया में सबसे पहले लेकर आया था सैमसंग लेकर आया था। तो एक कुछ स्मार्टफोन लेकर आया था, बहुत अराउंड 4000 या 5000 के उसके प्राइस था।
तो जिस टाइम सैमसंग एंड्रॉयड इंडिया में लॉन्च किया था, तो नोकिया वालों ने कहा ये जो है मतलब कि हमारे उसका नहीं है, हमारा जो कस्टमर है हमारे ब्रांड के प्रति लॉयल रहेगा, कस्टमर विल नॉट स्विच टू सैमसंग। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम व्हाट वी सॉ, देयर वाज इन्फ्लक्स ऑफ एंड्रॉयड फोन्स इन द मार्केट। तो धीरे धीरे क्या होता है कि नोकिया मार्केट से आउट हो जाता है। तो यही गलती करते हैं हम एज अ मार्केटर कि हमें लगता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो बेटर है, हमारा जो कस्टमर है वो लॉयल रहेगा, और उसी में हमारा कंपटीटर जो है वो कोई नया इनोवेट करके, अब देखो जैसे इनोवेशन की बात करते हैं तो एंड्रॉयड जो है वो अगर देखा जाए है तो ऑपरेटिंग वर्जन ही, लेकिन कस्टमर्स को वो न्यू फीचर्स दे रहा है, उसमें न्यू जो है क्वालिटी दे रहा है, उसकी कुछ परफॉर्मेंस इंप्रूव कर रहा है, उसमें फीचर्स दे रहा है, कुछ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ला रहा है, न्यू इनोवेशन के साथ आ रहा है। तो ये सारी चीजें होती है कि नोकिया सोचा कि हम मार्केट प्लेयर हैं, हमारा कस्टमर हमारे ब्रांड के जो है क्या कहते हैं टुवर्ड्स आवर ब्रांड्स विल लॉयल, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो धीरे धीरे देखा क्या कि नोकिया जो है मार्केट से चला गया। आज के टाइम में हम देखें तो आज के टाइम में नोकिया का कोई शायद ही कोई नाम जानता हो, बहुत कम लोगों को पता होगा कि हाँ नोकिया भी कभी ब्रांड था। तो यही होता है कि जब आप अपने प्रोडक्ट को ही सुपीरियर मानने लगते हैं और कंपटीटर को आप इग्नोर करते हैं तो आपको जो है नुकसान होता है। तो एज अ मार्केटियर माय ऑब्जेक्टिव इज टू हैव अ वॉच ऑन मार्केटिंग एक्टिविटीज, व्हाट इज गोइंग इन मार्केटिंग एनवायरनमेंट, उस पर वॉच करना मेरे को जरूरी है। और अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द टाइम वी हैव टू अडेप्ट टू द अकॉर्डिंग टू द मार्केट एनवायरनमेंट, उसके अकॉर्डिंग हमें अपने आप को चेंज करना है, चेंज करते रहना चाहिए। और एंड्रॉयड में फिर मार्केट जो है क्या कहते हैं उसके बाद फिर हमने देखा कि जो है फिर नेक्स्ट स्टेजेस जैसे आती गई तो उसमें फिर चाइनीज कंपनीज का इन्फ्लक्स हुआ, चाइनीज कंपनीज ने डोमिनेट किया मार्केट। तो आप क्या क्या इनोवेटिव मेथड से अपने प्रोडक्ट को ला सकते हैं, मार्केट में कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें होती है इस प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के अंदर। Then moving ahead, a new or improved product will not necessarily be successful unless it is priced, distributed, advertised and sold properly। तो वही बात है कि हमने नया प्रोडक्ट तो बना लिया, बट अगर उसके प्राइसेस हमने अपने कॉम्पिटिटर से ज़्यादा रखे हैं, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ कमी है, एडवर्टाइजिंग हमारी ठीक नहीं है, तो हमारा प्रोडक्ट सक्सेसफुल नहीं होगा। अब जैसे प्राइस की अगर हम बात करें तो when Chinese product smartphones were introduced into the Indian market, so they were priced very cheaply. You can say 6,000 to 7,000 you will get very efficient and effective smartphone, very affordable prices. You can get a smartphone at affordable prices. On the other hand competitors का क्या था कि उनका जो स्मार्टफोन था वो काफी एक्सपेंसिव थे। तो चाइनीज कंपनी जब स्टार्टिंग में लेकर आया तो 6 से 7 हज़ार में अगर आप परचेज कर रहे हैं तो आपको कई सारे फीचर्स उसमें और बढ़िया जो उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो सारी चीजें आपको मिल जाती थी। तो अब ऑन द अदर हैंड कि जब दूसरे ब्रांड्स थे उनका 10 to 15,000 का प्राइस था और उनके जो फीचर्स भी कम थे, तो कंज्यूमर यही देखता है कि अगर मेरे को फीचर्स सेम फीचर्स मिल रहे हैं, कम रेट पे मिल रहे हैं, देन व्हाई शुड आई पे हाई। तो चाइनीज कंपनीज ने ऐसे ही डोमिनेट किया मार्केट को, क्योंकि उनके यहाँ पे क्या है कि इंडस्ट्रीज उनके अगर कहें कि घर घर में इंडस्ट्रीज लगी हैं, उनका जो एक मैन्युफैक्चरिंग का हब है तो वो है, एक पूरी जो है वर्ल्ड में वो डोमिनेट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग में। तो अगर लार्ज स्केल पे मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं तो मेरे को इकोनॉमिक एफिशिएंसी जो है वो मिलेगी। तो आपका प्रोडक्ट प्राइस जो है वो ठीक होना चाहिए, कंपेरेबल होना चाहिए। अगर आपके डिस्ट्रीब्यूशन में कोई कमी है तो वहां पे आपको दिक्कत हो सकती है। डिस्ट्रीब्यूशन आपने ठीक है, आपने अच्छा प्रोडक्ट बनाया, उसका प्राइस भी ठीक रखा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन आप नहीं कर पा रहे। सपोज करो कि यू आर एंटरिंग इनटू रूरल मार्केट्स,
तो रूरल मार्केट्स में हमें पता है कि वहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज हैं, वेयर हाउसिंग की फैसिलिटीज हैं, कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज हैं, एज कम्पेयर टू अर्बन एरियाज दे आर लेस। तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि मैं अगर मेरा टारगेट कस्टमर किसी फार फ्लंग एरिया में है, फार फ्लंग विलेज में है, तो वहां तक वो प्रोडक्ट कैसे पहुंचेगा, तो वो आपको देखना पड़ेगा कि उसमें फिर आपको सारी चीजें कैलकुलेट करके चलनी पड़ेगी कि मैं वहां तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचा सकूं। सो योर प्राइसिंग, योर डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल एज एडवर्टाइजिंग। सपोज करो कि आपने अपने प्रोडक्ट को प्रमोट ठीक से नहीं किया। हम कई बार देखते हैं कि कई सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, लेकिन प्रमोशन अगर उनकी एडवर्टाइजिंग ठीक नहीं है तो वो मार्केट से आउट हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अब जैसे मैंने आपको एक जियो का एग्जांपल दिया था, जब जियो आया था तो उसने कोई एडवर्टाइजिंग का टूल ना चूज करके उसने क्या किया था, डायरेक्ट कस्टमर से अपना रैपोर्ट इस्टेब्लिश किया था कि व्हाट जियो डिड कि दे गिव freebies or free offers on a purchase of a new SIM card. Then for a few months they were offering free data, free calling, and whatever the communication services can be availed of. Then what they did afterwards, they started charging slightly. Then after a period of time they started charging a normal price. So this is the strategy, that how you advertise, promote your product into the market, that it catches the attention of the customers, and customers are prompt to buy your product. So your pricing, your distribution strategy, your advertising, your promotion should be in a coordinated matter, in a coordinated way, so that your product is attracted by the customers, and customers are prompt to buy your product and sold properly. Then उसके बाद आपको जो सेलिंग की टेक्निक्स है वो भी आपको देखनी है कि ठीक है, मैंने प्राइसिंग भी को भी देख लिया, एडवर्टाइज भी बेटर तरीके से कर लिया, और मेरी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी भी बेटर है, लेकिन उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, उसको मैं कैसे सेल कर रहा हूँ, क्या मैं सेल के साथ कुछ ऑफर कर रहा हूँ, आफ्टर सेल सर्विसेज को मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। जैसे आज के टाइम में हम देखें, कोई भी हम प्रोडक्ट को परचेज करके ला रहे हैं, हम आफ्टर सेल सर्विसेज को जरूर देखते हैं कि हमें आफ्टर सेल्स में सर्विसेज में क्या मिलेगा। क्या अगर हमारा प्रोडक्ट में कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आता है या कोई माइनर उसमें जो है डिफेक्ट आता है, तो वो क्या कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव आके उसको रिपेयर करेंगे, उसको रिप्लेस करेंगे, या मेरे को कितने दिन में वो रिप्लेस करके देंगे। तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं। तो योर प्रोडक्ट टू बी सक्सेसफुल इन मार्केट, इट शुड बी प्राइस्ड strategically, distributed strategically, advertised and sold properly in the marketplace. So the crux of the product concept is that as a marketer I am focusing on the product's quality, product's performance, product's features, product's characteristics, product's new and innovative methods, whatever is related with the product, I am focusing on that. एक छोटा सा एग्जांपल आपको और देता हूँ। जब स्मार्टफोन के बाद जब वॉचेस आई थी, स्मार्ट वॉचेस आई थी, तो स्मार्ट वॉचेस में क्या हमने देखा था कि वॉच का भी काम कर रही है, और उसके अलावा आप वॉच के ही, जैसे एप्पल वॉच आई थी जब, उसके हेल्प से ही आप अपने स्मार्टफोन को कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल कैसे कर सकते हैं कि आप वहाँ पे इनकमिंग कॉल्स को रिसीव कर सकते हैं, आउटगोइंग कॉल्स कर सकते हैं, और आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है कि आपके कितनी इनकमिंग कॉल्स आ रही हैं, आउटगोइंग कॉल्स, या कोई सोशल मीडिया साइट पे आपको अगर कोई मैसेज कर रहा है। तो ये जो फीचर्स हैं, ये जो इनोवेटिव मेथड्स हैं कि हम अपने प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, उसमें क्या हम नया ऐड कर सकते हैं। सो whatever I am introducing into the product, whether it is its quality, its performance, its features, these all are related with the product concept. So this was the second concept or approach to marketing, where the focus was on product. Moving ahead, selling concept.
अब सेलिंग कॉन्सेप्ट में क्या हुआ कि एज अ मार्केटियर माई ऑब्जेक्टिव वाज टू सेल मोर. So whatever I have produced, I have designed my products accordingly. Now my objective is to sell more. So here my objective was focused on selling. So the selling concept holds that consumers and businesses, if left alone, won't buy enough of the organization's product. तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि आपका जो सेलिंग का स्ट्रेटेजी है, तो वहां पे आपको ये प्ले ऑफ कर रही है. अब जैसे एक एग्जांपल दे दूंगा आपके पास. कई बार हमारे पास फोन आ जाता है. फोन कहाँ से आता है कि सर मैं इस कंपनी से बात कर रहा हूँ सर, ये हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी है सर, आप इंटरेस्टेड हैं? या फिर सर मैं इस बैंक से बात कर रहा हूँ, क्या आप इंटरेस्टेड हैं? तो ये जो सारी स्ट्रेटेजी होती है कि हम अपने कस्टमर्स को कैसे अट्रैक्ट करें, उसको हम कैसे अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं. So the selling concept holds that consumers and businesses, if left alone, won't buy enough of the organization's product. तो यही मतलब है कि सेलिंग का हम धीरे धीरे कहें तो हम धीरे धीरे मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करें. तो जैसे हम मार्केट में अगर सिंपल मार्केट की बात करें तो मार्केट की कहा जाता है कि मार्केट इज अ प्लेस वेयर सेलर्स एंड बायर्स इंटरैक्ट एंड दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर. जहाँ पे मार्केट वो प्लेस है जहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स इंटरेक्ट करते हैं. बायर्स अपना जो है प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है और सेलर्स अपने जो है जो भी उसकी ऑफरिंग है उसको सेल कर रहा है. तो अगर सेलिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर हम बायर्स एंड सेलर्स को अलग अलग कर दें तो जो हमारा कॉन्सेप्ट है बाइंग का वो सफिशिएंट नहीं होगा. वहां पे क्या होगा कि अगर आपके पास सेलर्स अलग हैं आपके और बायर्स अलग हैं तो देयर विल बी नो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. सो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इट इज प्रैक्टिस्ड मोस्ट अग्रेसिवली विद अनसोल्ड गुड्स बायर्स डोंट नॉर्मली थिंक ऑफ बाइंग सच एज इंश्योरेंस एंड सिमेट्री प्लॉट्स. तो सेलिंग के अंदर मैं क्या कर रहा हूं कि मैं अपने जो है प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहा हूं कि मेरा जो है प्रोडक्ट वो बिक जाए. जिसको हम कहते हैं कई बार इसको हम कहते हैं कि जैसे लॉट में जो है जो प्रोडक्ट है या गुड्स है उसको हम बेच देते हैं कि अब जैसे अगर आपने दिल्ली में विजिट किया हो, जैसे सीपी वगैरह विजिट किया हो, पालिका बाजार विजिट किया हो या आप गफ्फार मार्केट गए हो, तो वहाँ पे आप क्या देखते हैं कि जो भी आप जैसे ही मार्केट में एंटर करते हैं तो जो सेलर्स हैं वो कई बार आपसे मतलब कि आपका कई बार हाथ पकड़ लेते हैं, अपनी दुकान की तरफ खींचते हैं कि सर कुछ लेंगे, मैडम कुछ लेंगे, आप ले लीजिए, ये इतने प्राइस में ये है. तो जो एक सेलिंग की जो स्किल है, एक जो सेलिंग की स्ट्रेटेजी है वो यहाँ पे काम कर रही है कि मैं अपने प्रोडक्ट को बस बेचना है मेरे को, कैसे भी करके बस whatever my objective, my primary objective is to sell more and more I sell, I will be earning more and more profit or more and more income. So बट सर ये भी तो होता है ना कि अगर कोई डिस्काउंट मांगता है कि नहीं इतना नहीं इतना ही देंगे तो हाँ. फिर उन लोग को मेन तो वो होता है कि जितना उनका कॉस्ट लगा है वो उससे थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट कमा सके ताकि जो उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वो सब लगे वो रिकवर हो जाए. हाँ हाँ होता है, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि जो भी उन्होंने लगाया कि ठीक है. अब यही तो होता है कि देखो अब जो अगर हम मार्केट में जाते हैं, जैसे मैंने आपको पालिका बाजार का एग्जांपल दिया, तो वहां पे आपको अगर टी शर्ट है या जीन्स है तो वो 300-500 वो बोलते हैं पहले स्टार्टिंग के प्राइस. फिर आप जैसे जैसे उनसे बार्गेनिंग करते हैं तो वो आके एक प्राइस पे जो है कहते हैं ठीक है इतने पे हम आपको सेल कर देंगे. तो जो स्ट्रेटेजी है कि हाँ ठीक है मैं कस्टमर को इतने पे ऑफर कर रहा हूँ और मेरी जो कॉस्ट है मेरे को पता है मेरी कॉस्ट कितनी लगी है, इससे नीचे मेरे को नहीं जाना है, उसमें मैं अपना प्रॉफिट मार्जिन भी जोड़ के कि मेरे को इससे इतने नीचे नहीं जाना है. तो ये होता है. और वहां पे क्या होता है नॉर्मली वो लोग जितने भी प्राइसिंग वो लोग उसकी बताते हैं, जो रेट्स बताते हैं वो ऑलमोस्ट डबल या जो है 3 टाइम्स बताते हैं. तो आपका ये पॉइंट ठीक है. हाँ ठीक है, मेरे को अगर मेरे को सेल करना है तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरे को जो भी मेरा कॉस्ट लगी है वो तो रिकवर हो मेरी, और उसके साथ अगर मैं प्रॉफिट नहीं अर्न कर रहा हूँ तो फिर मेरा सेल करने का कोई जो है ऑब्जेक्टिव नहीं रह जाता है. एज अ मार्केटर माई एज वी ऑल नो कि माई प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न प्रॉफिट्स. सो
मोस्ट एग्रेसिवली विद अनसोल्ड गुड्स। तो ऐसा हम गुड्स सेलिंग को अंदर हम जो है अपने कस्टमर्स को ऑफर करें जो कस्टमर परचेज नहीं करना चाहते। अब फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल और आपको देता हूँ। आपके नेबर हैं, कोई नया किचन सेट ले आए, कोई जो क्रॉकरी के जो आइटम ले आए, आप उनके यहाँ जाते हैं, देखते हैं, आपको जरूरत नहीं है कि आपको जरूरत नहीं, जो भी आपके घर में किचन सेट है, क्रॉकरी के जो भी है वो आपका काम चल रहा है, लेकिन आप उनके यहाँ जाते हैं, देखते हैं, तो आपको लगता है कि हाँ कि मेरे को ये भी परचेज कर लेना चाहिए। तो सेलिंग कॉन्सेप्ट के अंदर क्या है कि मैं वो प्रोडक्ट को ऑफर कर रहा हूँ जो कस्टमर बाय नहीं करना चाहता, उसको जरूरत नहीं है, लेकिन मैं उसको प्रमोट ऐसा कर रहा हूँ, उसको एडवर्टाइज ऐसा कर रहा हूँ, उसको ऑफरिंग ऐसे कर रहा हूँ कि वो प्रॉम्प्ट हो जाता है बाय करने के लिए। एंड व्हेन फर्म्स विद ओवर कैपेसिटी एम टू सेल व्हाट दे मेक रादर देन मेक व्हाट द मार्केट वांट्स। तो इसमें थोड़ा सा जो ये बता रहा है, ये वाला पॉइंट, ये लगभग थोड़ा सा इसमें प्रोडक्शन से मिलता जुलता है कि व्हेन फर्म्स विद ओवर कैपेसिटी एम टू सेल व्हाट दे मेक रादर देन मेक व्हाट द मार्केट वांट्स। तो यहाँ पे हम प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के अंदर हम क्या देखे थे कि जो भी मेरे पास प्रोड्यूस किया मैंने एज अ मार्केटर, जो भी मैंने प्रोड्यूस किया उसको मैं मार्केट में सेल कर रहा हूँ। तो यानी कि मैं कस्टमर को कोई चॉइस नहीं दे रहा हूँ। तो यहाँ पे भी सेलिंग में भी थोड़ा वही आ रहा है कि ओवर कैपेसिटी हो गई सेल करने की, व्हाट दे मेक, कि जो भी मेरे पास मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, मैं जो भी प्रोड्यूस कर रहा हूँ उसको मेरे को सेल करना है। मैं वो चीज ऑफर नहीं कर रहा हूँ जो मार्केट को चाहिए, यानी कि जो कस्टमर को चाहिए मैं वो ऑफर नहीं कर रहा हूँ, जो मेरे पास है मैं वो ऑफर कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने आपको किचन सेट का एग्जांपल तो सर दिया, ऐसे तो फिर सेल नहीं होगा ना, क्योंकि मार्केट तो उसी हिसाब से होना चाहिए कि जो कस्टमर डिमांड करेगी। हाँ देखो वो ठीक है जो कस्टमर डिमांड करेगा, लेकिन जब आपको बल्क में मिलेगा, अब जैसे मैंने आपको किचन सेट का एग्जांपल देखा, आपको जरूरत नहीं है, इंश्योरेंस पॉलिसी तो आपने एक परचेज कर रखी है लेकिन आपको जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ उसमें ऐसा कर मैंने ट्विस्ट करके कर दिया कि सपोज करो आपने मेडिकल इंश्योरेंस ले रखा है, उसमें मेडिकल का कवर नहीं है, मैं कहता हूँ कि आपको मेडिकल का कवर में दे देता हूँ या और हेल्थ का भी कवर दे देता हूँ, तो उसमें आपको लगेगा हाँ ठीक है ये थोड़ा डिफरेंट है, उसको मेरे को परचेज कर लेना चाहिए। तो ऐसे होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरे पास जो भी अवेलेबल है मैं उसको सेल कर रहा हूँ। तो समझ में आया? यस सर, ये थोड़ा और क्लैरिफाई करूँ? क्लियर हो गया। ठीक है। तो एज अ मार्केटियर व्हाट एवर आई हैव आई एम ऑफरिंग इन द मार्केट प्लेस। तो यहाँ पे जो सेलिंग का बेसिकली, अब जैसे आप सेल की बात करें तो अब जैसे जो बीपीओ में अगर जो काम करते हैं उनको टारगेट दिया जाता है कि आपको इतने कॉल्स करने हैं और आपको इतने सेल करनी ही करनी है किसी भी हालत में, टारगेट बेस पे उनकी जॉब होती है। तो जो रिपीटेड कॉल्स हमारे पास आते रहते हैं कि इंश्योरेंस पॉलिसी ले लीजिए, बैंक का अकाउंट ओपन करवा लीजिए, या हमारे ट्रेवलिंग जो है जो पैकेज हैं वो अवेल कर लीजिए, या एजुकेशन लोन आपको लेना है, तो ये जो सारी चीजें हैं। तो सेलिंग में आपने गए, अब जैसे एग्जांपल देता हूँ और थोड़ा सा पालिका बाजार का ही एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। आप गए, आपको क्लोथ्स चाहिए, सपोज करो आपको जीन्स चाहिए, अब आपको जीन्स चाहिए, लेकिन जो आप जब शॉप पे जाते हैं वहां पे तो आपको लगता है कि कोई टी शर्ट बहुत बढ़िया लगेगा, आपको जरूरत नहीं है लेकिन आपको लग रही है कि हाँ मेरे को जो है इसको परचेज करने लेना चाहिए, या फिर मैं एक ही जीन्स को मेरे रिक्वायरमेंट थी, मैं जो 2 जीन्स ले आया। तो जो वहां पे जो सेलर्स बैठे हैं वो उसको अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले इस तरीके से करते हैं, प्रमोट इस तरीके से करते हैं, आपको ऑफर इस तरह से करते हैं कि आपको लगता है कि हाँ एक ले लेते हैं, क्या जा रहा है, थोड़ा बार्गेनिंग करके थोड़ा प्राइसेस जो है वो ऊपर नीचे करके ले लेते हैं, क्या जा रहा है। जैसे 500 के एक मिल रहे थे, चलो ठीक है बार्गेनिंग कर ले, तो हो सकता है कि 450 की दोनों जो आपको एक पड़े तो 900 में आपको दोनों मिल जाए, जो नॉर्मल वे में आपको 1000 में मिलता। तो इस तरीके से करी जाती है सेलिंग। सो मूविंग अहेड, मार्केटिंग बेस्ड ऑन हार्ड सेलिंग इज रिस्की। तो अगर मैं सिर्फ सेलिंग पे ही फोकस कर रहा हूँ, सिर्फ सेल पे ही जाऊँ तो वो भी रिस्की है। क्यों? इट अज्यूम्स कस्टमर कोएक्स्ट इनटू बाइंग अ प्रोडक्ट, नॉट ओनली वांट रिटर्न और बैड माउथ इट और कंप्लेन टू कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन बट माइट इवन बाय इट अगेन। तो यहाँ पे जो कहने का मतलब है कि हमारा जो है into customer cost into buying a product, not only want return or bad mouth it
और कंप्लेन टू कस्टमर ऑर्गेनाइजेशंस बट माइट इवन बाय इट अगेन। तो जो सेलिंग के अंदर है कि आपका कस्टमर हो सकता है कि इसके जो है उसके, अगर सपोज करो कि आप कोई चीज लेकर आए, उसमें वो उसको रिटर्न रिटर्न भी आपको कर सकता है अगर उससे अच्छा नहीं लगेगा, या फिर दूसरों को बता सकता है कि नहीं भाई आप इस कंपनी का ये प्रोडक्ट मत परचेज कर लेना, मैं इसको लेकर आया था ये अच्छा नहीं चला। ये भी कर सकता है आपका कस्टमर, या फिर आपका कस्टमर उसको दोबारा भी बाई कर सकता है। तो जो सेलिंग का क्रक्स है कि मैं एज अ मार्केटर माय प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू सेल मोर एंड मोर आई कैन। यहाँ पे कस्टमर को जितना भी मैं अट्रैक्ट कर सकता हूँ, उसको जितना भी सेल कर सकता हूँ, वो मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। और यहाँ पे ये रिस्की इस वजह से है क्योंकि हमारा जो कस्टमर है, अगर हमने उसको बल्क में कोई ऐसा चीज ऑफर कर दिया, उसको ऐसा चीज सेल कर दिया और वो जाके अपने घर पे उसको देखता है, तो उसमें अगर कुछ डिफेक्ट लगता है या उससे लगता है कि नहीं आई हैव बीन चीटेड, तो उसको वो रिटर्न भी आपको कर सकता है या फिर दूसरों को बता सकता है। कि जैसे अब हम कई बार कोई प्रोडक्ट लेकर आते हैं, तो जब हम उसको घर में डिस्कस करते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में डिस्कस करते हैं कि इस कंपनी का ये चीज़ बेटर है, इस कंपनी की मेरे को ये चीज़ बेकार लगी, तो जो वर्ड ऑफ माउथ होता है, कि वर्ड ऑफ माउथ में आपको कंपनी के जो इमेज है वो बना भी सकते हैं और आपकी कंपनी की इमेज जो है वो क्या कहते हैं डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, उसको जो है डैमेज भी कर सकते हैं। तो सेलिंग, while selling you have to be very careful as a marketer. Moving ahead, marketing concept. So the modern marketing concept what we are seeing today is marketing concept. तो अब हम मूव करें, जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि when we are moving from one era to another, like we started with production, then we came to product, then we came to selling. तो each concept has its own characteristics. Like in production concept, what was my primary objective? My primary objective was to produce more as I can. In the product concept, my objective shifted towards product innovation, product features, product improvement, product quality. So my objective was focused on product. So whatever new I can do with my product. In selling concept, I am selling more and more to customers. तो एक हर किसी का अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो समय के साथ साथ धीरे धीरे बदल रहे हैं। अब मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में क्या है कि हम सीधा सीधा अपने कस्टमर्स के ऊपर सेंटर्ड है, कि कस्टमर के सेंटर्ड है। तो द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इमर्ज इन द मिड 1950s। ये 41 ये जो है उस बाय मिस्टेक आया है। 1950s के अराउंड स्टार्ट होता है एज अ कस्टमर सेंटर्ड सेंस एंड रिस्पॉन्स द फिलोसफी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब यहाँ पे जो कस्टमर, हम कहते हैं कि कस्टमर इज द किंग ऑफ मार्केटिंग। तो जो हम आज के टाइम में देखते हैं कि आपने जैसे अभी कहा कि जो हम परचेज करने जा रहे हैं, जो हमें चीज पसंद नहीं है, तो वो हम परचेज क्यों करेंगे? तो मार्केटिंग यहीं पे ऑपरेट जो है होता है कि मॉडर्न मार्केटिंग बेस्ड है कस्टमर्स के ऊपर, कि व्हाट इज योर कस्टमर डिमांडिंग, यू हैव टू रिस्पॉन्ड टुवर्ड्स दैट। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहला चीज जो है कि कस्टमर सेंटर्ड है, कस्टमर के ऊपर फोकस्ड है। सेंस एंड रिस्पॉन्स फिलोसफी है कि आप अपनी जो रैशनल है, आपकी जो थिंकिंग कैपेसिटी है, उसको आप यूज कर रहे हैं कि अगर मैं इस प्रोडक्ट को बाई कर रहा हूँ तो क्या ये मेरे लिए प्रोडक्ट ये बेटर है, क्या ये मेरे को जो इससे जितना पे कर रहा हूँ उतनी मेरे को इससे उसकी वैल्यू मिलेगी। तो ये हमारा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर आ रहा है। तो सर अगर हम इस हिसाब से गए तो फिर तो हम परचेज ही नहीं करेंगे ना, वो जो हम नहीं करना चाहते हैं, जैसे आपने पहले एक्सप्लेन किया था पहले वाले पॉइंट में। हाँ, तो ये कहाँ से रिलेट हो रहा है, मतलब कोई मैच ही नहीं हो रहा ना। देखो सेलिंग के अंदर क्या था कि हम अपने जो कस्टमर्स को सेल करें, सिंपल जो भी हमारे पास अवेलेबल है। अब यहाँ पे हम परचेज कैसे करेंगे कि हम, हो सकता है कि जो चीज हमें नहीं पसंद है हम उसको नहीं परचेज करेंगे, बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। तो उसमें क्या होगा कि एज अ मार्केटर मैं अपने कस्टमर्स को
जो है आइडेंटिफाई करोगे कि वो क्या चाहता है प्रोडक्ट में। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था नोकिया का, नोकिया और स्मार्टफोन का, कि पैसेज विद द पैसेज ऑफ टाइम कस्टमर्स को क्या लगा कि हमें जो है अब ऑर्डिनरी फोन जो है नहीं चाहिए, अब हमें स्मार्टफोन चाहिए, एंड्रॉयड फोन चाहिए। तो हम स्मार्टफोन एंड्रॉयड फोन की तरफ स्विच कर गए, तो नोकिया ऑटोमेटिक मार्केट से बाहर हो गया। तो इसी तरीके से हमारा कॉन्सेप्ट बेस्ड है मार्केटिंग का, कि जो कस्टमर आपको जो है जो उसकी रिक्वायरमेंट है, जो वो डिमांड कर रहे हैं, तो उसको आपको पूरा करना है। तो द जॉब इज टू फाइंड नॉट द राइट कस्टमर्स फॉर योर प्रोडक्ट बट द राइट प्रोडक्ट्स फॉर योर कस्टमर। तो यहाँ पे पॉइंट क्लियर हो रहा है कि हमें राइट कस्टमर नहीं चाहिए, मतलब कि हमने जो प्रोड्यूस किया अब उसके लिए हम कस्टमर को नहीं ढूंढेंगे, हम कस्टमर में ये देखेंगे कि हमारा कस्टमर क्या चाहता है। तो आपने कहा कि ठीक है, हमें जो पसंद नहीं आएगा हम उसको परचेज ही नहीं करेंगे एज अ कस्टमर। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप कस्टमर बात करें तो आपकी बात ठीक है। अब एज अ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू मार्केटर, ये मेरे लिए क्या इंप्लाई हो सकता है कि जो मेरा कस्टमर है उसको क्या चाहिए, वो मेरा प्रोडक्ट क्यों नहीं परचेज कर रहा है, क्या चाहिए उसको मेरे प्रोडक्ट में, कुछ नया इनोवेटिव क्या चाहिए। तो द जॉब इज टू फाइंड नॉट द राइट कस्टमर्स फॉर योर प्रोडक्ट बट द राइट प्रोडक्ट्स फॉर योर कस्टमर। So whatever your customer is asking for, you have to provide that. So as a marketer, your objective is to assess the requirement of customer, what your customer is seeking. So in marketing concept, the customer is said to be the king of the market. So whatever customer wants, you have to provide that products, that goods, that services, so that you can survive in the marketplace. अब यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, जैसे यहाँ पे Dell doesn't prepare a perfect computer for its target market, rather it provides product platforms on which each person customizes the features he or she desires in the computer. जो Dell करता है कि Dell की वेबसाइट पे अगर आप विजिट करें तो वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि आपके अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर में क्या क्या फीचर्स हैं, आप वो जो है डिजाइन कीजिए, मतलब कि उसको आप स्पेसिफाई कीजिए, जिसको हम कस्टम मेड या टेलर मेड या कस्टमाइज प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो इसमें आप क्या करता है कि सपोज करो कि मेरे को जो मैं अगर लैपटॉप परचेज करूँ तो उसमें जो नॉर्मल फीचर्स हैं, एक्सेल होगा या ऑफिस का पूरा सेट होगा, उसमें बाकी जो चीजें होंगी, लेकिन मेरे को कुछ स्पेसिफिक चीजों पे काम करना है, तो वो मैं स्पेसिफाई करूंगा कि हाँ भाई मेरे को जो स्क्रीन साइज इतना चाहिए, मेरे को इसमें ये वाला सॉफ्टवेयर चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आप अकाउंटिंग में काम करें तो आपको टैली चाहिए, अगर आप स्टैट्स पे काम करें तो आपको एसपीएसएस का सॉफ्टवेयर चाहिए, और भी जो 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 हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं, मतलब कि आपकी स्पेसिफिक नीड्स के अकॉर्डिंग, तो आप उसमें अपने कस्टमाइज जो है या टेलर मेड प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं। तो एज अ मार्केटर व्हाट आई एम डूइंग कि मैं कस्टमर्स को असेस कर रहा हूँ, उनकी रिक्वायरमेंट को असेस कर रहा हूँ कि उनको क्या चाहिए, उसी के बेसिस में मैं अपने जो है प्रोडक्ट को डिजाइन कर रहा हूँ और वहां से मैं जो है क्या कहते हैं अपनी मार्केटिंग को स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज के टाइम की जो मार्केटिंग है, यहाँ पे एक खास बात होती है। अब जैसे हमने पहले, इससे पहले वाले जो कॉन्सेप्ट देखे तो उसमें हम ये देख रहे थे कि जो कंपनी का रोल है वो ज्यादा प्ले हो रहा था, यानी कि एज अ मार्केटर वट एवर आई वॉज ऑफरिंग कस्टमर हैड टू बाय दोस। अब लेकिन मार्केटिंग के अंदर उल्टा हो रहा है कि अब मार्केटिंग यहाँ से नहीं स्टार्ट हो रही कि मैंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर दिया। अब मार्केट यहाँ से स्टार्ट हो रही है कि आपका कस्टमर क्या चाहता है। तो आप जो है 8x10 के कमरे में बैठ के डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि हमें यही प्रोड्यूस करना है, आपको मार्केट में निकलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि आपका कस्टमर क्या चाह रहे हैं। तो वहां से आपका जो मार्केट रिसर्च करते हैं, आप मार्केट प्लानिंग करते हैं, अपने कस्टमर को एनालाइज करते हैं, तो वो मॉडर्न मार्केटिंग वहां से बिगिन होती है कि आपका कस्टमर क्या चाहता है। तो उसके बेसिस पे फिर आप अपने प्रोडक्ट को डिजाइन करते हैं। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं, टाटा नैनो का। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इतने कम प्राइस में एक कार आ सकती है, लेकिन जो टाटा नैनो के इंजीनियर्स थे उन्होंने मार्केट में वो लोग निकले, मार्केट को असेस किया, देखा कि जो सेगमेंट है, जो लोगों की इनकम लेवल है,
कि जो एक लार्जर इंडिया का जो लार्जर जो सेगमेंट है वो इतनी इनकम जो है अर्न करता है और इतना वो स्पेंड जो है स्पेंड कर सकता है, उसके ऊपर नहीं कर सकता। तो उन्होंने कार को मतलब कि 1 से 1.25 लाख के बीच में कार को पर जो है डिजाइन किया और वो मार्केट में एक्सेप्टेबल भी रही। तो इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा कि आपका कस्टमर क्या चाहता है। अब जो कॉन्सेप्ट था टाटा नैनो का काफी पॉपुलर हुआ और काफी उनकी सेल भी हुई। तो बजट कार जो कहते हैं कि अब ज्यादातर अब जिनकी उतने 1 से 1.25 लाख से ज्यादा पे करने की कैपेसिटी नहीं थी, तो वो क्या कर रहे थे कि भाई सेकंड हैंड कार लेते थे। तो भाई should I go for second hand car when I can purchase a new car on the same price? तो टाटा नैनो को इस चीज को यूटिलाइज किया कि मेरा कस्टमर क्या चाहता है, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसको मैं अपने जो प्रोडक्ट ऑफरिंग के अंदर है उसको मैं कैसे सेटल कर सकता हूँ, उसको कैसे सेट कर सकता हूँ, उसके लिए मैं कैसे प्रोडक्ट को डिजाइन कर सकता हूँ। तो जो टाटा नैनो ने ये कार डिजाइन किया, इसको जो है इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट में फ्रगल इंजीनियरिंग कहते हैं, FRUGAL फ्रगल इंजीनियरिंग। तो ये जो फ्रगल इंजीनियरिंग का होता है, ये कुछ न्यू इनोवेटिव लेकर आए आप। तो डेल का एग्जांपल है कि आप कस्टमर्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं, whatever your customer is asking for, you have to come with those products and services. Moving ahead, होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो अब यहाँ पे क्या है कि आप जो मार्केटिंग का अभी अब तक हमने जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़े वो सारे एक साथ इसमें जो है ऑपरेट कर रहे हैं। तो होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में क्या हो रहा है कि इज बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट, डिजाइन and implementation of marketing programs, processes and activities that recognize their breadth and interdependencies. Holistic marketing acknowledges that everything matters in marketing and that a broad integrated perspective is often necessary. So whatever as a marketing, जो भी marketing का concept है, उसकी जितनी भी policies है, आपका जो product development से लेके उसके final customers तक पहुंचने तक जितने भी process हैं, आप उन सबको इन्वॉल्व कर रहे हैं। वैसा तो जब हम मार्केटिंग के डिफिनेशन देखे थे तो उसमें यही बताया गया कि भाई ये एक प्रोसेस है जिसमें हमारे बायर्स एंड सेलर्स का इंटरेक्शन हो रहा है और जितने भी आपकी एक्टिविटीज हैं वहाँ पे जितने भी प्रोसेस है वो सारे एक साथ जो है प्ले ऑफ कर रहे हैं और उनको आप बेटर वे में मैनेज कर रहे हैं। तो होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन डेवलपमेंट, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ marketing programs, processes and activities that recognize their breadth and interdependencies. तो जितने भी मार्केटिंग के आपके जो है एरियाज हैं, जितने भी, चाहे आपका प्रोडक्ट आपको डिजाइन करना हो, उससे पहले आपको अपने प्रोडक्ट को कैसे आप मैन्युफैक्चर करेंगे वो इस स्ट्रेटेजी को बनानी हो, आपका रॉ मटेरियल कितना लगेगा, उसमें आप उसका रेशो क्या रखेंगे, आप प्रोडक्शन की टेक्निक को क्या रखेंगे, आप प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर लिए, उसको प्रोड्यूस करें, उसके बाद आपको उसको स्टोर करना है, आपके वेयर हाउसिंग की फैसिलिटीज आपके पास है या नहीं है, उसके बाद आपको मार्केट में उसको लॉन्च करना है, आपको कस्टमर के पास डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसको एडवर्टाइज करना है, जो है मार्केट में जो है कस्टमर को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले प्रमोट करना है उसको। तो जितने भी एक्टिविटीज हैं मार्केटिंग के, जैसे जैसे हम लोग सब्सिक्वेंट यूनिट्स में मूव करेंगे तो उसमें देखेंगे कि कैसे कैसे हम प्रोडक्ट की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, प्राइसिंग की क्या बात होती है, उसके बाद प्रमोशन की क्या बात होती है, प्लेस की क्या बात होती है। तो जो आपके प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं मार्केटिंग, जिसको मार्केटिंग मिक्स कहते हैं, वो हम लोग अलग अलग चैप्टर्स में देखेंगे, डिटेल में देखेंगे। तो होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कि आप जो भी आपका मार्केटिंग का जितने भी एक्टिविटीज हैं उन सबको एक साथ लेकर चल रहे हैं और उसमें जो भी रोल प्ले कर सकती है एक्टिविटी, चाहे वो आपकी प्रोडक्ट डिजाइनिंग से लेके प्रोडक्ट डेवलपमेंट से लेके फाइनल उसको कस्टमर्स तक पहुंचाने में जितने भी आपके प्रोसेसेस एक्टिविटीज इन्वॉल्व है उन सबको आप इकट्ठा करके चल रहे हैं। तो मॉडर्न मार्केटिंग यही कहता है कि जैसे अभी हमने मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट के अंदर देखा क्या था कि मार्केटिंग डज नॉट बिगिन where you have produced a product, but it begins with identification of requirement that your customers have. तो होलिस्टिक मार्केटिंग के अंदर यही सारी चीजें हैं कि हम सारी चीजों को इन्वॉल्व करके चल रहे हैं। होलिस्टिक मार्केटिंग acknowledges that everything matters in marketing.
So whatever steps, whatever procedures, whatever programs, whatever activity is being performed in the marketplace comes under the holistic marketing concept, or holistic marketing concept assumes that everything matters in the marketing and marketplace, and that a broad integrated perspective is often necessary. तो आपको सारी चीजों को इंटीग्रेट करके चलना है, आपको अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से भी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट में काम करना है, आपका जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, अल्टीमेटली आपका जो भी परचेज करेंगे आप, रॉ मटेरियल है चाहे आपका, चाहे आपको अगर आपके प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना है तो उसके लिए जो एक्सपेंसेस लगेंगे, प्रमोशनल एक्सपेंसेस लगेंगे, वो आपको फाइनेंस करने हैं, या आपके जो सेलिंग डिपार्टमेंट है उससे भी आपको कोऑर्डिनेट करके चलना है। तो जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मार्केटिंग, वो सारी चीजें आपको इंटीग्रेट करके चलना है। So that's all for today, and thank